Hello everyone. Now we will discuss the some important question related to chapter 1. ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं बट आपके एनसीईआरटी बुक के थोड़े से आउट है, जो लास्ट मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स and 2 plus under root 3 upon 2 minus under root 3 is equal to a plus b under root 3, find the value of a and b। ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चन दिया होता है कि 2 plus under root 3 2 minus under root 3 is equal to a plus b under root 3 under root 3 find the value of a and b। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका देखिए यहाँ पर, 2 plus under root 3 upon 2 minus under root 3 इक्वल टू a प्लस b अंडर रूट 3। तो फर्स्टली b रेशनलाइज अदर साइड 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। तो रेशनलाइज में क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस अंडर रूट 3, तो वी मल्टीप्लाई नॉमिनेटर बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 and denominator by 2 plus under root 3 is equal to a plus b under root 3. Now multiply denominator by denominator and numerator by numerator is equal to a plus b under root 3. Now 2 plus under root 3 का whole square means a square फोर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी अंडर। नॉमिनेटर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 upon 4 minus 3। Now 7 plus equal to a plus b under root। Now compare numerator by numerator। तो compare rational by rational and irrational by irrational। तो rational number is 7 and here rational number is 8, then a is equal to 7। Now second is irrational b under root 3 and irrational is 4 under root 3। तो we compare b under root 3 4 under root 3 means cancel हो गया, under root 3 b is equal to। तो इन क्वेश्चंस में फर्स्टली हम क्या करेंगे, बी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इन अदर साइड एंड आफ्टर दिस वी कंपेयर रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑन बोथ साइड्स एंड वी गेट द रिजल्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इफ a and b are rational numbers and under root 11 minus under root 7 upon under root 11 plus under root 7 is equal to a minus b under root 77, find the value of a and b। Now we start the process, under root 11 minus under root 7 under root 11 plus under root 7 is equal to b under root 77। Now under root 11 minus under root 7 is equal to under root 11 minus under root 7 upon a minus b under root 77। Now numerator is under root 11 minus under root 7 का whole square under root 11। Now denominator is under root 11 plus under root 7 under root 11 minus under root 7 is equal to b under root 77। Now
a minus b का whole square, we get a square plus b square minus 2ab. Now a square is 11, b square 7 minus 2ab, 2 into under root 11 into under root 7. Denominator is a square minus b square, 11 minus 7. Under root 11 square 11, under root 7 का square 7 equal to a minus b under root 77. Now we get 11 plus 7 18 minus 2 under root. The formula is under root a into under root a, b equal to होता है आपका a b, under root a b. ठीक है, under root a into under root b, so under root b under root 11 into under root 7. तो 11 7 जा 77 upon 11 minus 7 4 equal to a minus b under root 77. Now b spelled 18 upon 4 minus 2 under root 77 upon 4. स्पेलिंग मीन्स में हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मीन्स दोनों का एलसीएम एक ही है, तो 18 upon 4 at 2 under root 77 upon 4 equal to. Now we compare rational by rational, that means a is equal to 18 upon 4. 18 upon 4 को भी डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2 9 जा 2 2 जा 9/2. तो a इक्वल टू आ गया आपका 9/2. नाउ नेक्स्ट b इक्वल टू अंडर 7 अंडर 77 अंडर 77 कैंसिल 2 upon 4 मींस 1/2. b इक्वल टू हो गया 1/2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें 1 upon x निकाल लेंगे, 1 upon 3 प्लस अंडर रूट 8. अब ये पता लग जाएगा 1 upon x निकालते क्यों है, ये अभी आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों निकालते हैं 1 upon x. तो कितना था 3 प्लस अंडर रूट 8. अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 8 का कंजुगेट होगा 3 माइनस अंडर रूट 8. तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए. तो नंबर 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8. नाउ 1 upon x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8. 1 upon x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8. नाउ we find आउट करना है आपको x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर. नाउ फॉर्मूला आपने 1 upon x का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर. सेम फॉर्मूला होता है 1 upon x प्लस 1 upon x का होल स्क्वायर. क्या होता है a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 into x into 1 upon x. x कैंसिल हो जाता है, तो मतलब फॉर्मूला हो जाता है x प्लस 1 upon x स्क्वायर प्लस 2. अब इस फॉर्मूले में सारे वैल्यू रख देंगे जो हमारे पास वैल्यू हैं. तो फर्स्ट देखो x प्लस 1 upon x भी है 1 upon x भी है. तो x कितना है 3 प्लस अंडर रूट 8, 1 upon x कितना है 3 माइनस अंडर रूट 8 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर. आपको फाइंड आउट करना है प्लस 2. अब देखिए 1 upon x हमने क्यों निकाला था, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में देखिए आ रहा है 1, यहाँ पे भी 1 upon x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी 1 upon x आ रहा है, ठीक है. इसलिए हमें क्या करना होगा, फर्स्टली वी फाइंड 1 upon x. वैल्यू आपने पुट कर दी. नाउ अंडर रूट 8 अंडर रूट कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना होगा 6 इक्वल टू 1 upon x स्क्वायर प्लस 2. नाउ 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू नाउ x स्क्वायर 1 upon x स्क्वायर 36 minus 2 x स्क्वायर plus 1 upon x स्क्वायर equal to 30.
ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है। स्क्वायर का फाइंड करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्टली हमें क्या करना है कि जो x आपका दिया हो उसको 1/x बना लेना है और उसको रेशनलाइज कर देना है। 1/x की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ फिर क्या करना है, फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है प्लस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √3 plus √2 upon √3 minus √2 plus √3 minus √2 upon √3 plus √2। तो अगर सिंप्लीफाई करना होता है तो इसको भी रेशनलाइज ही करना है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास क्वेश्चन है √3 plus √2 upon √3 minus √2 plus √3 minus √2 upon √3 plus √2। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रेशनलाइज कर लेंगे। अब देखिए इसकी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 plus √2 upon √3 plus √2 एंड सेम इसको रेशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे √3 minus √2 3 minus √2। ठीक है, इसकी डिनोमिनेटर यहाँ पे कितना था, √3 डिनोमिनेटर था √3 minus √2, तो उसका कॉन्जुगेट हुआ आपका √3 plus √2। तो सेम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सेम प्रोसेस है सेकंड वाले में, क्या था √3 minus √3 plus √2 आपका क्या था डिनोमिनेटर ये था। तो हम क्या करेंगे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना, माइनस के, -√3 minus √2 -√3 minus √2 नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को आपको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपका नॉमिनेटर कितना होगा, √3 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बनता है, √3 plus √2 √3 minus √2। सेम देखिए नेक्स्ट वाले में √3 minus √2 का होल स्क्वायर अपॉन √3 plus √2 √3 minus √2। नाउ नेक्स्ट है आपका सेम है। अब क्या हो गया यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना a स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको जो अंडर रूट होता है उसका होल स्क्वायर वही आ जाता है नंबर। ठीक है, जिसका अंडर रूट होता है। तो √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2ab 2 √3 into √2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर √2 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर √3 का a का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 2 माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर √2। नाउ नेक्स्ट इज 3 प्लस 2 कितना होगा 5 2 √6। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आ गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1। ठीक है, 3 माइनस 2 1 ही आ जाएगा। तो देखिए आपका ये भी बना गया, तो आपका कितनी वैल्यू होगा 5 प्लस 2 √6 प्लस 5 माइनस 2 √6 √2 √6 आप कैंसिल होगा, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10। ये रेशनलाइजेशन हो गई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई वाले जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन में आपको या तो रेशनलाइज वाला लगा होगा या सिंपल से प्लस माइनस वाले लगे होंगे। ठीक है, तो सारे सॉल्व करने और आपका एक सिंपल सा आंसर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, x = 4 minus √15 फाइंड x plus 1/x। ठीक है, तो फर्स्टली वी फाइंड 1/x, तो 1/x इसका करेंगे तो 1/4 minus √15 then we rationalize it, तो 4 plus √15 4 plus √15। ठीक है, रेशनलाइजिंग में क्या होता है कि हम उसके डिनोमिनेटर का के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो नॉमिनेटर कितना था आपका, डिनोमिनेटर 4 minus √15, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हुआ 4 plus √15।
then we multiply 4 plus under root 15, we divide 4 plus under root 15. Now 4 plus under root 15 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, वही आ जाएगा। यहाँ पे होगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन ए स्क्वायर मीन्स 16 माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर 15। नाउ 4 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आपका हो गया 4 प्लस अंडर रूट 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है आपको x प्लस 1 पान x, x प्लस 1 पान x आपको फाइंड आउट करना है। कितना? x प्लस 1 पान x, तो कितना हो गया? x आपका था 4 माइनस अंडर रूट 15 और 1 पान x आया 4 प्लस अंडर रूट 15, तो क्या हो गया? अंडर 15 कैंसिल, 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8। ये आपका आंसर हो गया। दैट्स क्लियर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्टली वी फाइंड आउट 1 upon x एंड वी रेशनलाइज एंड वी गेट 4 plus under root 15, then we find x plus 1 upon x is 4 minus under root 15 and 1 upon x is 4 plus under root 15, then we add x plus 1 upon x, then we get 4 minus under root plus 4 under root 15 under root 15 cancel, we get 8। now question number आपका है 6, x equal to 2 plus under root 3, find x square plus 1 upon x square। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं, लास्ट में क्वेश्चन था, ठीक है। और तो x plus 2 under 3 find x square plus 1 upon x square। तो फर्स्टली we find 1 upon x, तो 1 upon x is 1 upon 2 plus under root 3 and we rationalize it, means we multiply and divide by 2 minus under root 3 upon 2 minus under root 3। now numerator is 2 minus under root 3, denominator is 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3, then numerator 2 minus under root 3 and denominator is a plus b and a minus b, means a square minus b square, 2 का square and minus 3 square means 2 minus under root 3 upon 2 का square 4 and under root 3 का square 3 means 2 minus under root 3 upon 1, that means 2 minus under root 3 and we find out करना है आपको x plus 1 upon x square means x plus 1 upon x का whole square, then we get a square x square 1 upon x square plus 2, a square plus b square plus 2ab, then x plus 1 upon x कितना है आपका? x कितना है? 2 plus under root 3 and 1 upon x is 2 minus under root 3, x square plus 1 upon x square plus 2, then we get root 3 cancel, 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर is equal to x square plus 1 upon x square plus 2। now 4 का स्क्वायर 16 is equal to x square, then x square plus 1 upon x square is equal to 16 minus 2, x square plus 1 upon x square is equal to 40। ठीक है, देखो प्रोसेस आपका सभी का वही होता है कि फर्स्टली हमें क्या करना है? p फाइंड आउट 1 upon x, ठीक है, जो आपका दिया होगा नंबर, जो वैल्यू आपकी x की दी होगी, फर्स्टली p फाइंड आउट 1 upon x, उसका इन्वर्स कर देंगे एंड b गेट 1 upon x, 1 upon x आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से 1 upon x फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से आपको रेशनलाइज कर देना है कि जो डिनोमिनेटर होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको और आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आने के बाद फिर दोनों को हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस ही फाइंड करना है आपको, प्लस कर लेंगे दोनों को, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला आप नोट करके रख लेंगे और उसके बाद वैल्यू रख देंगे और आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कुछ फॉर्मूले जिनको याद रखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले पहले भी आपको नोट करा चुके हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले को केयरफुली याद रखेंगे, फॉर्मूला बहुत यूज होगा।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए बी यूज होता है -2ab, एंड ऐसे फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलेज हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये तो थे 1 to 6 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो सीरीज होगी उसमें 6 से लेकर 12 तक आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दें। मींस बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपका वीडियो जैसे ही अपलोड होता है कोई भी, तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है।